Our next topic is translocation of organic solutes. Friend, what do you mean to the translocations of organic solute? From a movement of organic and inorganic solute from one part of the plant to another is known as the translocations. What do you mean to? There is the solute from one part to the plant to the another part is a movement in organic and inorganic solute form. There is a call to translocations. Example: transport of sugar in the several tubes in the leaves to the stem or fruit. The example of transfer of the sugar in a leaves to stem of fruit. There are experimental evidence to suggest that a phloem is the tissue involved in the translocations of product of the photosynthesis. Example: sugar. Sugar is produced in a photosynthesis in the leaves and then sent to the all part of the plant from the growth and development of plant. Leaves is known as the source where the food is produced and all other part of the plant which is receive these foods is known as the sink. What do you mean to sink? Sink can be root, stem, fruits and storage organ like a tuberous bulb and the rhizomes. This is unlike conduction of water in a xylem will take place is one direction from the root to a bud in the aerial part of the plant. Phloem translocations for a leaves take place in all directions. The next is a mechanism of translocations. What do you mean to the mechanism of translocations? Mean a sugar solution in the phloems will their tubes move along with the water potential gradient and create between the source, leaf and sink storage cell. Their source is leaf and sink is storage cell. Here the find a Marx moment of the sugar solutions from the leaves is a mesophyll to civis is a tube of the leaves and then to all part of plant. So here show in this diagram. In diagram, there is translocation of mechanism. There is show on carbon dioxide of upper side, then high OP is the mesophyll says a leaf. The sugar from photosynthesis and here is a water movement and in the xylem tissue and the water from a soil the root cells and sugar consumed to the storage and the sugar solution and the loaded in the several tubes is means to the phloem. The diagram is clarity for the translation of the mechanism in a plant and their processing. And this model known as the Munch photosynthesis is a mass flow theory is the most acceptable model for the phloems and translocation. There is a Munch hypothesis known as the Munch hypothesis or mass flow theory is the most acceptable model for the phloem translations. दोस्तों अगर देखा जाए तो कहते हैं कार्बनिक विलयन का जो स्थानांतरण होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आखिर जो हम ट्रांसलोकेशन पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रांस का मतलब होता है स्थान, अंतरण का मतलब होता है लोकेशन। तो इसलिए हम जो है दोनों से मिलके बना है, यानी कार्बनिक विलयन का जो है स्थानांतरण कैसे होता है। तो यही हमारा टॉपिक भी है कि कार्बनिक विलयन का जो है स्थानांतरण किस प्रकार होता है और इसमें क्या अपना जो है विशेष योगदान देता है। तो कहते हैं कार्बनिक जो कार्बन और अकार्बनिक विलयन पदार्थों का पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने को हम स्थानांतरण कहते हैं, यानी स्थान प्लस अंतरण यानी ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी याद रखना ये बात बहुत ईजी है कि कार्बन अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक विलयन पदार्थों को जो है पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाने के लिए जो तकनीक है, जो रूल है, जो रेगुलेशन उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं या क्या कहते हैं स्थानांतरण। ठीक है, साधारण शब्दों में चलीनी नालिकाओं में शर्करा के परिवहन को स्थानांतरण कहते हैं। अगर साधारण भाषा में लोग हैं तो जो नालिकाओं में जो शर्करा यानी शुगर का जो ट्रांसफर होती है उसी को स्थानांतरण कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में था। कहते हैं कुछ प्रयोगात्मक तथा सुझाए गए हैं कि फ्लोएम का एक ऐसा ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों जैसे शर्करा के स्थानांतरित करने का काम भी करता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ट्रांसलेशन करते हैं ये सारे पत्तियां जो होते हैं, यानी अपना भोजन को जो है विभिन्न विभिन्न पार्टों में पहुंचाना ही इनका उद्देश्य है। कहते हैं पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा शर्करा का उत्पादन होता है और इसे पौधे के सभी भागों की वृद्धि और विकास के लिए भेज दिया जाता है। अगर नहीं जाएगा तो पौधे का जो है विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ट्रांसलोकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग इन अ प्लांट। सो पत्ती एक ऐसी
ऐसा साधन है जहाँ पर भोजन उत्पन्न होता है और पौधों के दूसरे भागों में यहाँ पर भोजन पहुँचाया जाता है, जिसे हम शिंक कहते हैं। शिंक नाम से जाना जाता है। शिंक जड़, तना, फल और स्नेह के अंग जैसे कंद, वल्ले, राइजोम इत्यादि हो सकते हैं। देखिए, शिंक का मतलब ही होता है, शिंक का मतलब होता है जड़, तना, फल या संचलन। ये सारे को अगर हम मिला देते हैं तो वो शिंक कहलाती है। ठीक है। इस प्रकार जाइलम में पानी का जो है अनचाहा संचलन जो कि एक दिशा में शुरू होकर जड़ से होकर पौधे के ऊपरी वलय भागों में भेजा जाता है, फ्लोएम स्थानांतरण पत्तियों द्वारा सभी दिशाओं में होना सुनिश्चित करता है। अब देखिए, ये कितना इम्पोर्टेंट था कि सारे पार्ट में पहुंचाना भोजन, क्योंकि देखिए अगर नहीं पहुंचेगा सभी पार्टों में भोजन तो पौधा जो है पूरी तरह से प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको पहुंचाना, यानी कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ जो है उसको जो है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपको पता है भोजन अगर नहीं पहुंचेगा तो वो पार्ट जो है ग्रोथ नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। अब इसमें जो है हमारा मैकेनिज्म क्या है ट्रांसलोकेशन की, यानी स्थानांतरण की क्रियाविधि क्या है। देखिए, मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि। ठीक है, तो क्रियाविधि क्या है, कैसे कार्य करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है कि क्रिया कैसे करता है। देखिए, शुगर जो है विलिया को फ्लोएम चालिका नालिका में पानी के स्थैलिक स्थान के साथ सोत्र यानी पत्तियों और शिंक कोशिकाओं के बीच गति करता है। ये तो आपको पता लग ही चुका होगा कि शुगर जो होता है, आपको पता है स्थानांतरण संचलन विधि द्वारा यानी शिंक के द्वारा कोशिकाओं को यानी जो है संचलन सभी भागों में पहुंचाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका हम डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है पत्तियों की जो है मेसोफिल जो होता है कोशिका में उच्च ओपी प्रकाश रश्मि से प्राप्त शर्करा इकट्ठा करता है, यानी इसको हम कहते हैं वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल का क्षय। ठीक है। उसके बाद जल नालिका फ्लोएम में भरा हुआ है शर्करा विलयन के रूप में प्रस्तुत होता है। फिर शर्करा उपयुक्त अथवा संचलित करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, मूल कोशिकाओं में जाती है और मूल कोशिकाओं में जाकर जाइलम ऊतकों में जो है जल का संचलन करती है। अब फिर जो होता है वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाती है। तो इस प्रकार जो है सारी गतिविधियाँ होता है, यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होता है वो होता है इसी तरह से। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल हो या इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, तो इसी प्रकार से जो है सारी क्रियाएँ होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, ये सारी क्रियाएं जो होती है उसको हम कहते क्या है, यह जो है इसको हम कहते हैं मॉडल, मंच, परिकल्पना या साहित्य प्रवाह मत, यानी मंच, हाइपोथेसिस और मास फ्लो थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लोएम स्थानांतरण का सबसे अधिक स्वीकार्य मॉडल है, यानी इसको सभी लोगों ने जो है स्वीकार भी किया है और इसको जो है मान्यता भी दिया है। इसलिए ये जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मंच फॉर हाइपोथेसिस का जो है या मास फ्लो थ्योरी के जो आपके समक्ष जो मॉडल है वो क्या है, तो याद रखना यही एक मॉडल है और ये एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। The our next topic is the most important topic in a plant, that transpiration. Transpiration mean, what do you mean to transpiration? The first is question is mind is what is a transpiration? So transpiration is the loss of water from the areas part of the plant in form of water vapor is a term, is a transpiration. Friend, the loss of water from the aerial part of the plant in the form of water vapor is a term to the transpiration. It's a vapor form of water. It's called to the transpirations. When transpiration is a low and absorption of water by the root is a high loss of water from a leaves in the form of liquid is a term gutations. The gutation it mean to a high loss of water from the leaves is form a liquid is a term is a gutations. Their transpirations may be occur through the three main sites in a plant. The first, cuticles, lentili, and the stomata. The first of cuticuli. The cuticles means cuticles is a wax is the cover by the epidermis of leaves and the green herbaceous stem. So it is a mean twitching and the transpiration still about 10% of the total transpiration may be take place through the fine cuticulars pores, and he is a process known as the cuticular transpiration. It is called to the cuticulars transpiration. And lentili is are the area in the bar of the stem, branches, and the flesh fruit. Here the flesh fruits which are made up to the loosely arranged cell that account of about 0.1% of water loss. It is known as the lenticular transpirations.
And the eighth list is a stomata. The stomata are the minute spore on the epidermis of leaves or terete grade stems, whose the opening and closing are controlled by the guard cell. About 90% of water loss from a plant take place through the stomata by processing known as the stomatal transpiration. Friend, it is a stomatal transpiration in a stomata. The our next topic is mechanism of transpiration. So, the transpiration occur in the two stages. Mechanism of transpiration is a two stages. Is first is the evaporations of water from a cells walls of mesophyll cells into the intracellular space, and second is a diffusion of this water vapor of internal cellular space into the outside atmosphere through the cuticulus, lenticulus, and the stomata. When the outside atmosphere is dried, so factor affecting to transpiration. Who is the factor is affecting our transpiration? So there is the first. There are many external internal factors that affect a process. The first is temperature. First is temperature. The increasing in temperature increasing the rate of transpirations by the increasing the rate of evaporation of water from a cell surface and decreasing a humidity of the atmosphere. Second is a wind velocity. The wind velocity is an important factor. The increasing in the wind velocity increasing the rate of transpirations by removing the water vapor of the atmosphere and the lowering the relative humidity around the aerial part of a plant. So third is a light. The light has a got no direct effect on the rate of transpiration, but is indirectly it is affect the rate in the two way. The firstly by the controlling the stomata opening, and secondly by the affecting the temperature. With the increasing intensity of the light rate of transpiration increasing because the stomata get open and temperature increase. And fourth is water supply. Friend, fourth is a water supply. Here, deficiency of the water supply in the soil decrease the rate of transpiration by the decreasing the rate of absorption. When the deficiency of water in the soil because too much, then the plant lightly and they do not recover from the wetlands unless water to supply in the soil. This is known as the permanent wetlands. The permanent wetlands is the when in the hot and dry summer day the plant transpire more casual to higher water loss by the leaves than the root are able to absorb, even though there is enough water in the soil. The plants with the gravitating to the temporarily wetlands as the plant recover from such wetlands in their late afternoon at a night. The next is atmospheric pressure. There is a fifth point is atmospheric pressure. The reduction of the atmospheric pressure reduce the density of external atmosphere, thus the permitting more rapidly diffusion of water. Plant growings on the high altitudes will show higher rate of transpiration, and there is a development extrophatics corrector. The extrophatic corrector there is important. Atmospheric pressure is the a pressure of reduce the density of external atmosphere. The reduce the density of external atmosphere. The sixth point is the atmospheric humidity. The most important factor of effect to transpirations. There is a atmospheric humidity. The humidity means to the amount of water vapor present in the atmosphere. The diffusion and evaporation of water depend on the vapor pressures and the gradient of the difference of water potential gradient between the atmosphere and the inside of leaf. So more the difference, more will be the rate of transpiration. It is a atmospheric humidity is the most important to evaporation of the water in a plant. The internal plant factor. The content plant adaptations reduced transpirations mean a reduced size of the leaves, thereby to reducing a transpiring of surface. Some exophatics a plant have a needles like a spine like a leaves, the pinnae and the openidia. There things a deposition of the caudine wax like substance on the leaf surface. The stomata found sunken in their cavities are
surrounding by the epidermis, hair as in the neurosis and canca. And the root shot is a ratio when there is more root and the less of shorted system of leaves. There will be a more untranspiration. Root is the water absorbing a surface and the short are leaves representing the transparent surface. High root short ratio will be causal to more transpiration. दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रांसपिरेशन यानी वर्ष उत्सर्जन। देखिए ये जो होता है पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है पौधों में जो होती है पानी का हर्ष होता है। ठीक है, तो वर्ष उत्सर्जन का मतलब ही ट्रांसपिरेशन होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ष उत्सर्जन होती क्या है? तो देखा जाए तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाषा में कह दे सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों में जल वाष्प के रूप में जल क्षय को वर्ष उत्सर्जन कहते हैं। देखिए जल क्षय का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी जय का क्षय, इसका मतलब होता है वाटर जो लॉस होती है उसको हम वर्ष उत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और द्रव्य रूप में इसे जो है बिंदु स्वात्र यानी गुटेशन कहते हैं, यानी बिंदु स्वात्र कहते हैं। तो याद रखना बिंदु स्वात्र कहते हैं जो जिसमें द्रव्य के रूप में होते हैं, और जो जल के क्षय के रूप में होते हैं उसको हम वर्ष उत्सर्जन कहते हैं यानी ट्रांसपिरेशन। तो इसमें दो राय आपको नहीं होना चाहिए। कहते हैं पौधों में वर्ष उत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रमुख स्थानों में होता है। ठीक है, जैसे कुलीकट में हो गया। ठीक है, उसके बाद है लेंटिसेल्स यानी वर्तरंध्र में हो गया, यानी रंध्र यानी स्टोमेटा में हो गया। तो ये 3 चीज़ें जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जिसमें ये चीज़ें होती है। देखिए वेलकुट अपना जगह पर अपना स्थान रखता है, वातरंध्र अपना जगह पर अपना स्थान रखता है, और रंध्र जो स्टोमेटा होता है अपना स्थान पर रखता है। जैसे कि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये आपके लिए भी एक कहते हैं एक तरह से वर्ष उत्सर्जन हो जाएगा। रीजन इसका ये होता है कि अगर आप जैसे सब्सक्राइब करके रखते नहीं हो तो दोबारा जो मैं टॉपिक भेजूंगा आपके लिए तो वो टॉपिक आपको मिलेगा नहीं, फिर रह जाओगे। तो सोचिए नहीं दोस्तों, विचार नहीं कीजिए, फटाक से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ यहीं तक नहीं है सिर्फ रुका हुआ है, इसका बहुत विस्तृत है, समय के साथ सब कुछ होता चला जा रहा है। तो आप जो है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आप चूक ना जाओ, बाद में कहीं सोचने में ना लग जाओ कि भाई जो मैंने देखा था वीडियो कि क्या नाम था उसका, क्या चैनल का नाम था। तो यही बच्चे मुझे बार बार बताते हैं कि आपका चैनल तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, नहीं मिलता, रीज़न तो यही है ना कि आप सब्सक्राइब करके रखते नहीं हो ना, आपको पूरे वीडियो का इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए जो चीज़ हर्ष हो जाता है ना, जो चीज़ कहते हैं लॉस हो जाता है, उसको दोबारा मिलना संभव नहीं होता है। अगर पौधों में पानी जो है हर्ष हो जाए तो फिर दोबारा जो है उसको पत्तियों को खींचना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार ढूंढना पड़ेगा, बार बार ढूंढना पड़ेगा, और इससे टाइम वेस्ट होता है। इसलिए क्या कीजिए, सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना गलत कामों के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता है, और अच्छे कामों के लिए कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होता है। सिर्फ एक सब्सक्राइब जो रेड बटन दिखता है उसको सब्सक्राइब करके आगे निकल जाना होता है। इससे क्या होता है कि अगर आप इस क्लास में हो, NIS में हो, या +1 में जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हो या +2 में पढ़ रहे हो, तो इस दोनों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 क्लासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक NIOS बोर्ड के लिए जो बायोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं, जो 11वीं के जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, NCERT हो या UP बोर्ड हो या आपका बिहार बोर्ड हो, सब जगह यही चलता है। ये 2 राय नहीं है, तभी तो मैं इसको सिलेबस वाइज डाल रहा हूँ, टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ कि आपके लिए जो हो ये सुविधाजनक हो। ठीक है, तो सोचना नहीं है ना विचार करना। विचार गलत कामों में किया जाता है कि हम करें चाहे ना करें, लेकिन अच्छे कामों में सोचना नहीं होता, सिर्फ दबाना होता है। चलिए आप जो है सब्सक्राइब का बटन दबाइए, हम आगे जो है सिलेबस को देखते हैं क्या है जो है हमारा अगला क्यूटिकल। क्यूटिकल कहता है ये है कि क्यूटिकल पत्तियों और संस्कृत जो है तनों का ऊपरी मोम और आवरण जो क्यूटिकल कहलाता है, यानी जो मोम की जो आवरण होता है ना पत्तियों और शक्तियों के तनों के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल यद्यपि इसका जो अर्थ यह हुआ कि वर्षोजन रुकेगा, यानी वो वर्षोजन रुकने के लिए ऐसा होता है, परंतु कहते हैं लगभग संपूर्ण वर्षोजन का लगभग 10% भाग जो होता है क्यूटिकल के द्वारा ही होता है, और इसे उपचरित यानी क्यूटिकुलर्स वर्षोजन के नाम से भी जाना जाता है, यानी उसको हम उपचर्मीय यानी क्यूटिकुलर कहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है वातरंध्र। वातरंध्र जो होती है पेड़ की छाल के ऊपर वातरंध्र पाए जाते हैं, यानी याद रखना कि पेड़ की जो छाल होती है उसके ऊपर ही पाया जाता है।
और ये छिद्र रूप से जो व्यवस्थित कोशिकाओं को निर्मित होती है और इसके द्वारा जो है लगभग 0.1% जल का क्षय होता है। इसे हम वात रंधित वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वात रंधित वाष्पोत्सर्जन। लेकिन आप रंध्र से तो आप परिचित ही होंगे, यानी स्टोमेटा से तो आप पता है कि 8th क्लास से 7th क्लास 6th सब में पढ़े हो। तो रंध्र जो होती हैं पतियों को एपिडर्मिस में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोश यानी गार्ड सेल पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इससे भी बड़ा जो है गार्ड सेल को कौन नियंत्रण करता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि गार्ड सेल को कौन सेल जो है नियंत्रण करता है। जिस बच्चों ने अगर टॉपिक ढंग से सुना होगा, जाना होगा, वो मुझे कमेंट करें और बताएं कि गार्ड सेल को नियंत्रण कौन सा सेल करता है। ठीक है, अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो करेंगे, जो नहीं कहोगे वो तो बेचारे लीव कर जाएंगे, उनको क्या मतलब है। लेकिन कहते हैं स्टूडेंट वही होता है जो हर एक क्वेश्चन को जो है दिमाग में रखता हो। तभी मैंने याद करो, मैंने बोला भी था कि ये पीएमटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गार्ड सेल को कौन सा सेल जो है नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ। आगे हम करते हैं। कहते हैं पौधों में लगभग जो है 90% जल क्षय रंध्रों द्वारा होती है और इसे जो है स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी रंध्रीय जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार होती है। देखिए इसका मैकेनिज्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब कहते हैं वाष्पोत्सर्जन दो अवस्थाओं में होती है। एक होता है मेसोफिल कोशिकाओं से लेकर अंतरकोशिकीय अवकाशों के पानी का विशिष्ट होना, और दूसरा जो है अंतरकोशिकीय स्थानों से इस जल वाष्प का विसरण पहाड़ी वायुमंडल में होता है। जब बाहरी वायुमंडल अपेक्षाकृत कम नम हो, यानी जो बाहर होता है वो कम नम्र हो, तो जाके ये वाष्पोत्सर्जन होना जो है होता है। कहते हैं उसके बाद जो है हमारे समग्र वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करता है। तो ये कई बार एग्जामिनरों का फेवरेट रहा है क्वेश्चन और एग्जाम में आने के चांसेस भी है, चाहे किसी भी क्लास में हो। अगर सिलेबस है आपके तो ये क्वेश्चन 100% जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ही रहता है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, कहते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, एक तो होते हैं आपको बाहरी, एक होता है आंतरिक। दो तरह के प्रभावित करते हैं, बाहरी कारक और एक आंतरिक कारक। तो सबसे पहले तो हमारा पता ही है कि तापमान होती है। तापमान किसी भी चीज़ को प्रभावित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो टेम्परेचर जो होती है, तापमान बढ़ोतरी से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि भाई जितना टेम्परेचर होगा उतना पौधे में से जो है पानी का हर्ष होना ये तो संभावित ही है, जिससे कोशिका की सतह से पानी के वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है और वातावरण में आर्द्रता से कमी आ जाती है, यानी पौधों में जो है पानी कमी आ जाती है। उसके बाद वायु वेग यानी विंड वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मान लीजिए तेज हवाएं चल रही है तो इसका भी जो है फर्क पड़ता है। कहते हैं वायु वेग में बढ़ोतरी से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने की द्वारा जो है वायुमंडल से जलवाष्प को हटने या अपेक्षित आर्द्रता को कम कर देती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर अदा करती है। उसके पश्चात है प्रकाश। देखिए लाइट भी एक अपना जगह पे महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं प्रकाश यानी लाइट, वाष्पोत्सर्जन की दर पर प्रकाश के परोक्ष रूप से कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अपरोक्ष रूप से यह दर को दो तरीकों से प्रभावित करता है। प्रथम तो बात ये कहती है कि रंध्रों में खुलने की प्रक्रिया को नियंत्रण करके और दूसरा तापमान को प्रभावित करके। तो ये दो तरीके जो है प्रकाश प्रभावित करता है। एक जो है प्रक्रिया को नियंत्रण करके यानी खुलने वाली प्रक्रिया जो होती है, दूसरा जो है तापमान को प्रभावित करके। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि रंध्र खुल जाता है और तापमान बढ़ता है। देखिए जो कहते हैं ना, कुछ जो होती है एक रूल रेगुलेशन पे काम करती है, लेकिन क्या यहाँ रंध्र जो होती है, रंध्र तब खुलती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है। इसका मतलब है प्रकाश जब पड़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो है मॉर्निंग हो गया है और जो है पौधे अपना भोजन बनाने के लिए तैयार हैं। तो पत्तियां के जो है जो रंध्र जो होती है वो खुल जाता है, जैसे प्रकाश पड़ता है पत्तियों पे जो है वो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं खुल जाता है। तो प्रकाश अगर पड़ता रहेगा तो वो खुला ही रहेगा, तो इसका भी इफेक्ट इस पर पड़ता है। उसके पश्चात जो है जल आपूर्ति। देखिए वाटर सप्लाई जो है एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है रोल अदा करता है। कहते हैं जो मिट्टी या मृदा में जल आपूर्ति में कमी के कारण अवशोषण की दर कम होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। जब मिट्टी में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है तो पौधे भी इसका प्रभाव होता है, यानी उसका प्रभाव जो है पौधों पर भी पड़ता है और वो मुरझाने से नहीं बच पाते हैं तब तक कि मिट्टी में पानी की आपूर्ति न किया जाए। इसे स्थायी मुरझाना कहते हैं। कुछ समय के लिए देखते हो पौधे, आप देखते हो कि सुबह सुबह पौधे बहुत हरे रहते हैं, लेकिन जैसे शाम होते होते सब मुरझा से जाते हैं। लेकिन आप पानी शाम में डाल देते हो तो सुबह देखते हो फिर से हरे हो जाते हैं। तो इसको
कहते हैं कुछ समय के लिए यानी स्थायी मूर्छन कहलाता है। जब गर्मी और सूखी गर्मी के दिनों में पौधे जड़ से जितना पानी अवशोषित कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वाष्पशोषण हो जाते हैं। जब मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पानी होती है इसे हम अस्थायी मुरझाना कहते हैं। इस प्रकार मुरझाने से पौधे शाम तक या रात को पुण्य ठीक हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। उसके पश्चात कहते हैं वायुमंडल दाब का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, जो कि 5वां पॉइंट है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो भी है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं वायुमंडलीय दाब में कमी होने से बाहरी वायुमंडल के जो सदन में कमी आ जाती है, यानी घनत्व में जो है वो काफ़ी कमी आता है, वायुमंडल के घनत्व में काफ़ी कमी आती है और इस प्रकार पानी का विसरण अत्यधिक मात्रा में होता है। अधिक ऊंचाई पर उगने वाले पौधों में वर्षण की दर अधिक दिखाई देती है, जबकि उसमें जो है मरुस्थलीय विशेषता होती है, यानी ऐसे पौधे जो होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में काफ़ी पाया जाता है। और इसका जो अंतिम जो प्रभाव है वो क्या है, जो बाहरी प्रभाव था वो है वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। कहते हैं आर्द्रता का अर्थ है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा यानी पानी का विसरण और वाष्प वायुमंडल और वाष्प द्वारा दबाव स्थिर पर निर्भर कर होता है। अब फिर पत्तियों के भीतर जल जो विभव स्थिरांक पर निर्भर होते हैं। ये फिर पत्तियों के भीतर जल विभव और स्थिरांक में जितना ज़्यादा अंतर होता है उतनी ही ज़्यादा वर्षण की दर भी होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है वर्षण में, यानी ह्यूमिडिटी का जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके पश्चात हमारा जो है आंतरिक पादप कारक, यानी आंतरिक भी होते हैं। अगर बाहर हमने पढ़ा है तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा चीज़ है जो है वाष्पशोषण को काफ़ी प्रभावित करती है। तो पहला तो यही आता है, कुछ पौधों में जो है अंकुलनता वाष्पशोषण की कम करती है, यानी अंकुलनता जो होती है उसके वाष्पशोषण को कम करती है। दूसरा जो होता है पत्तियों के आकार में कमी। देखिए पत्ती का अगर कम आकार होगा तो वाष्पशोषण भी कम होगा, जिससे कुछ जो वाष्पशोषण की सतह कम हो जाती है। और मौसम पौधों में सुई जैसे कांटे जैसी पत्तियां पाई जाती है, यानी पाइन और एपेशिया जो है नागफनी में पाया जाता है। तो इसका कारण यही है, यानी ये आंतरिक हुआ प्रभाव कि पहले ही पत्तियां जो हो छोटी हो जाए, इससे न पत्तियाँ बड़ी होगी न वजन अधिक होगा। तो ये भी कहते हैं ना एक इंटेलिजेंसी रहती है। कहते हैं पत्तियों के सिरों पर जो है क्यूटिकल की एक मोटी परत यानी मोम जैसा पदार्थ का जमा होने से भी जो है वाष्पशोषण कम हो जाता है। तो देखिए कहते हैं ना जो जैसा कंडीशन में ढलता है वैसा ही बनता है। अगर आप सिर्फ ये देखते रह जाइएगा, इसका पॉइंट नोट आउट नहीं कीजिएगा तो आपको क्या लगता है कि आप याद कर पाओगे? नहीं। जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक होता है, टॉपिक लेके इसके मेन पॉइंट को याद कीजिए, तब जाके आप अच्छा से अच्छा कर पाओगे। नहीं सिर्फ देखने से नहीं होता है। जब भी आप मेरा वीडियो देखा करो तो साथ में पेन और पेंसिल जरूर रखा करो, साथ में उसके पॉइंट नोट डाउन करने के लिए। यही तो एक इंटेलिजेंट बच्चे की समझदारी है। सिर्फ हाथ में मोबाइल पकड़ लेने से, देख लेने से कुछ नहीं होता है। ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एजुकेशन है। कहते हैं समय बदल गया है इसलिए एजुकेशन जो है मोबाइल पे आ गया है, ठीक है। नहीं तो हम कॉपी पेंसिल पे ही सब कार्य करते थे। आजकल टीचर भी कहते हैं भाई मोबाइल में टॉपिक देख लेना। तो यही कारण है जो हम यहाँ पर अभी आए हैं। उसके पश्चात करेड़ा और साइक्लस में रंध्र रोम में घिरे हुए गुहाओं में धंसे पाए जाते हैं, यानी ये गुहा जो होती है इसमें धंसे पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात जो है इसमें बताया गया है कि जड़ प्रवाह अनुपात जब बहुत सारी जड़ें हो और प्रवाहित तंत्र में पत्तियाँ कम तथा वसन की अधिक होगी तो जड़ें जो है पानी अवशोषित करने का सतह और प्रवाह पत्तियों पानी की वसन करने की सतह है। अधिक जल प्रवाह अनुपात अधिक वसन के कम कारण होगा। देखिए कहते हैं जड़ों प्रवाह का भी अपना एक कार्य होता है। इससे जो होता है अधिक से अधिक जो है पानी पौधे खींच सकते हैं, क्योंकि जितने जड़ें होंगे उतना पानी खिंचाएगा और उतना वसन को जो है थोड़ा सा कम किया जा सकता है। उसके पश्चात जो है हम पढ़ेंगे वसन के डंठों की क्या अपनी भूमिका है। रोल ऑफ स्टोमेटा इन ट्रांसपिरेशन। फ्रेंड, व्हाट यू मीन टू रोल ऑफ स्टोमेटा इन ट्रांसपिरेशन? The sense of most of the water is lost through the stomata. Plant and regulate the degrees of the stomata opening and closing to reduce the water loss with the help of guard cell. It has been seen the stomata show the periodic opening and closing due to duration variation, diurnal variation, depending upon to heat and light, water content of cells and humidity. The stomata are generally closed during to the night and remaining open during to day in the presence of sunlight. From early morning till the midday, the stomata are open and hence the transpiration increasing till a midday. During the sunny midday, there is stomata are closed and leaves get retired to
Transpiration from to late afternoon till evening. The stomata are open again and hence the transpiration increase. At the night, the stomata are closed and hence their transpiration is very slow. So, it's the next topic, the stomata aperture. What do you mean to stomatal aperture? Here, structure of stomatal aperture is stomata represented a minute pore surrounding by two guard cells, which is a turn or close surrounding by the two or more subsidiary cells. The stoma act is the turuga is the operating value. Then there is a close and open according to the alternative change in their fluidity. And the turbidity of the guard cell is a subsidiaries is a cell. The guard cells have a unevenly thickened wall. The cell wall is around stoma is tough and the flexible, and there one way from the stoma is the thinner. The shape of guard cells differ in the dicot and monocot through the mechanism remaining in the same. Here, mechanism of stomatal action. The mechanism of stomatal action. So here, the opening and closing of stomata is depending upon to gradity and facility. The alternative in the guard cells is a subsidiary cell. When to the guard cells are triggered to the subsidiary cell are facilitated, their stoma open and even guard cells lose water into the subsidiary cells, so that guard cells become a facilitated and subsidiary cells. Because the guarded there is stoma close to the mechanism opening and closing of stomata, dicot and monocot is given below. From there is a dicotyledons is a plant have a kidney shaped guard cell. Their inner walls around the stoma thinner than to outer cell. The first is a when guard cells is equal to guard cells expand and tough inner walls become a convex and stomata open get distracted to the torr pressure. And second is the when to gut turgor is the guard cells is a shrug and inner cells works calm stomata closer. It is important. Here showing in this picture stomatal action in a dicot plant. Friend, here is totally showing in this picture stomata open and closed are the guard cells also present and thinks wall, and the subsidiary cells is also present. And here the stomata is closed. Here open, here close. The thinning walls and the guard cells is the important role is play in this closing and opening. Say here is a stomatal action in the dicots plant. Here in a monocotyledons plant, their guard cells are thumbs well shaped with a thinner and wall toward to the nearest the stomata and thinner walls toward their inflated regions. When the guard cells become graded, the regions with the thin wall blazed and get inflated, and thin walls is a move apart. The stomata open. When the guard cell the inflated part of glass, the thin wall is a capless and the stomata closed the loss of water. Here monocot plant in their stomata action in the monocot plant. Here stomata open and other side stomata is closed. There are chloroplast present and here and subsidiary cells and thin walls also present. There is a totally show in this figure. There are clarity of stomata action in the monocot cell. Here of stoma open and here is the totally closed of stoma. Changing the gradity of facilities, alternatives involving the guard cells and subsidiaries cell in the varying about the opening and closing of stomata has been known from a long time, but is a mechanism that will lead to the priority need for the expanded. That is important for come to the Hindi. कहते हैं दोस्तों कि यहाँ जो है वर्षजन में रंध्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये भूमिका जो होती है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भी रहती है, क्योंकि रंध्रों द्वारा सबसे अधिक पानी का क्षय होता है। ये तो हमने पढ़ा भी है। पौधे रंध्रों खुलने और बंद करने की प्रक्रिया को जो है डिग्री को नियंत्रित करके पानी के क्षय को कम कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि दिन के दौरान जो है दैनिक परिवर्तन रंध्रों का खुलना व बंद होना ऊर्जा और प्रकाश कोशिकाओं में जल की मात्रा और अंदरता के ऊपर निर्भर करता है। यह रात के समय अक्सर बंद रहते हैं, जो कि आपको भी पता है। कहते सुबह से लेकर मध्याह्न तक रंध्र जो है खुलते हैं और इसलिए जो है वर्ष मध्याह्न तक बढ़ता है। दोपहर में अधिक धूप के समय रंध्र बंद हो जाता है, इसलिए जो वर्षण कम हो जाता है। कहते हैं दोपहर के बाद जो होता है से लेकर शाम तक जो है रंध्र दोबारा खुलता है
और तब वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाती है। रात्रि के दौरान जो है रंध्र बंद हो जाते हैं और तब वाष्पोत्सर्जन काफी कम होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो स्टोमेटा का क्या स्ट्रक्चर है, यानी रंध्र की क्या संरचनाएं हैं। तो आपको बता दिया जाए कि प्रत्येक रंध्र अत्यंत छोटे छोटे जो है छिद्र से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा जो होती है, इन्हीं छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उनको स्टोमा कहते हैं। यह दो द्वार कोश यानी गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। यानी इसको चित्र में आप देखोगे तो क्लैरिटी आपको दिखेगी कि दो तरह से जो है गार्ड सेल से ये घिरा हुआ रहता है। कहते हैं स्टोमा जो है स्फीति चलित वलय का इस तरह कार्य करता है, जो कोशिका के स्फीति के अनुसार बंद और खुलता है। द्वार कोशिका की भित्ति असामान्य रूप से स्थूल होते हैं और स्टोमेटा के चारों ओर पाई जाने वाले कोशिका भित्ति दृढ़ और लचीली होती है। और स्टोमेटा एक तरफ का भाग पतला होता है, ठीक है, जिसमें द्वार कोशिका आकर जो है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्रियों में अलग अलग होता है। यद्यपि प्रक्रिया दोनों में सामान्य होती है। देखते हैं कैसे। देखिए, रंध्र प्रक्रिया जो है क्रिया की क्या प्रक्रिया होती है। रंध्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिका में उपस्थित स्फीति दाब के ऊपर निर्भर करता है। यानी स्फीति दाब जो होती है इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी स्टोमेटा के जो है द्वार यानी गार्ड सेल को जो है कंट्रोल करती है, स्फीति दाब करती है। जब द्वार कोशिका दृढ़ होती है तब रंध्र खुलते हैं, जब द्वार कोशिका पानी छोड़ देती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। द्विबीजपत्री एक बीजपत्री पत्रों में जो है रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया हम नीचे करेंगे और समझेंगे इसमें क्या है। कहते हैं पहला पॉइंट यही आता है कि द्विबीजपत्री पौधों में द्वार कोशिका बुक के आकार की होती है, यानी जो है किडनी के आकार की होती है। बुक का मतलब होता है दोस्तों किडनी के आकार की होती है। स्टोमेटा के चारों ओर की आंतरिक दीवारें बाहरी दीवारों की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। अब यहाँ पर जो है बताने की कोशिश किया गया, जब द्वार कोशिका यानी ये में बताया गया है कि जब द्वार कोशिका स्फीति द्वार के कारण फूल जाती है तब क्या होता है, द्वार कोशिका फैलती है, उसके पश्चात दृढ़ आंतरिक कोशिका उत्तम हो जाता है, यानी रंध्र खुलने जाते हैं। बी पार्ट में ये बताया गया कि जब द्वार कोशिका का स्फीति दाब कम हो जाता है तो द्वार कोशिका ढीली हो जाती है और आंतरिक कोशिका भित्ति जो है नजदीक आ जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है। तो ये बातें जो है हमेशा कहाँ होती है दोस्तों, द्विबीजपत्री के रंध्रीय क्रियाओं में होती है। यानी द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो होती है, जिसमें आप देख सकते हो डायग्राम में बहुत ही जो है एक अलग डायग्राम दिखाया गया है, बहुत ही स्मृति डायग्राम दिखाया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें देखिए ये खुला रंध्र है, ये बंद रंध्र है। तो देखोगे कि दोनों तरफ जो है गार्ड सेल से ढका हुआ है। गार्ड सेल जो है दोनों देखोगे दोनों साइड प्रेजेंट है। उसके बाद पतली बाहरी भित्ति है, मोटी आंतरिक भित्ति और हरित लवक और द्वार कोशिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल अदा करता है। तो गार्ड सेल जो है दोनों साइड बने होते हैं और इसको जो है क्लोज कर देता है। ये तो था हमारा द्विबीजपत्री में। अब एक बीजपत्री में देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है। तो कहते हैं एक बीजपत्री पौधे में द्वार कोशिका गुंबद के आकार की होने के साथ साथ फूले हुए भाग की क्या है भित्ति मोटी होती है। कहते हैं ये में जो होता है जब द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है तो स्फीति जो है वाले भाग उभर जाते हैं और बढ़ते और फूल जाते हैं, तब मोटी दीवार अलग हो जाते हैं, जैसे रंध्र खुल जाते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। कहते हैं ऐसी धारणा लंबे समय से थी कि स्मृति में जो है बदलाव आने से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, लेकिन इस स्मृति किस कारण से कम ज़्यादा होती है इस बात का व्याख्या करना आवश्यक था। तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, ये एक बीजपत्री का चित्र है जिसमें आप देखोगे कि खुला हुआ रंध्र कैसा है और बंद रंध्र कैसे हैं। यानी हरित लवक, मोटी भित्ति, डमरू के आकार के द्वारा कोशिकाएं होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसको बनाता है। तो ये जो होता है देखिए जैसा पौधा होगा उसी तरह के जो होते हैं इनके क्रियाविधि है। तो यार स्टार शुगर hypothesis. What do you mean to star sugar hypothesis? This is a hypothesis goes by their basis that are increasing sugar concentration due to photosynthesis in a guard cells and endoosmosis of water during the day lead to a turbidity of guard cells leading to the opening of stomata and the result. The decreasing of sugar concentration of flowing by the exomosis lead to be closing of the stomata at the night. The change in the guard cells during the day in the light and at the night in their dark are given below. So friend, here reaction in the light and reaction in the dark. So first of all, the reaction in the light for utilize of the carbon dioxide during the photosynthesis in the guard cells and drop in the carbon dioxide lead to increasing in the pH or protoplasma becoming alkaline. And conversion of starch into sugar increase the concentration of solute
and endomosis of the water from the subdiary cells to be their guard cells and increase the pterygoid's pressure of the guard cells is lead to be a turbidity of guard cells is accompanied by the facility of subdiary cells and stomach is open. There is a stomach open during the light. And second is the reaction in the dark. Accumulation of the carbon dioxide due to absence of photosynthesis in the guard cells. So, increasing acidity or decreasing pH due to the formation of the arabonic acid. The conversion of sugar into the starch, decreasing concentration of solute in the guard cells. So, exomosis water from a guard cells to subdiaries or cell. The decreasing turgor is the pressure in the guard cells that lead to the fragility of guard cells, accompanied by the increasing TP and the turbidity of subdiary cells. The stomach close at the dark. So important the stomach open during the night light and the close to the dark. There is important reaction. This theory can be explained to stomatal movement where is the starch absent in the guard cells or guard cells a lack of chloroplast and open of stomata at the night and closed by the day in the some plant like a fluorescent and cative. There is effect of potassium ion on the stomatal open and closing. The friend here, it has been to conventionally is a provide that is the accumulation of potassium ion guard cells as the bearings about their opening and stomatus and close of potassium ion from a guard cells into the subdiaries as their cells bearing about their closing of stomata. Here, during a daylight and during a night, so there is a shown in the flow chart. The first of all, during daylight is accumulation of potassium ion by the guard cells and increasing solute concentration and endomosis of water and increasing of gradatory and the stomal open. Stoma is open and during a day and dark there is a loss of potassium ion by the guard cells and decreasing solute concentration, exomosis of water and decreasing gradatory and the stomal close. So the uptake of potassium ion is balanced by one by the flowing. The uptake of potassium ion balanced by the one of flowing. The first A uptake of chlorine ion on ions. The subdiary cells is a lack of chloroplast and the take of chlorine ion on ion to the balance the influx of potassium ion. And second is transport of hydrogen ion released from the organic acid. In some plant, the guard cells is obtained the starch. There is accumulations of organic acid like a malute by their conversion of the starch into the malic acid in a light. Their organic acid dissociate with their molecule and the hydrogen. Potassium react with the malate from the potassium malate which is increasing the solute concentration. And C is entry of potassium is a balance by the exit of proton hydrogen ion. And third is the role of oxalic acid. It has been observed that during the water shortage in the soil by the intense of solar radiations of plant hormones, oxalic acid is accumulated in their leaves, leading to the closing of stomata and thus the preventing as exclusive water loss. Under the experiment condition also when oxalic acid is applied to be leaves, stomata and get a close and check of water loss. जैसे दोस्तों आपको पता है कि स्टार सगड़ा परिकल्पना क्या होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है कि स्टार सगड़ा परिकल्पना में जो है क्या रिएक्शन होती है जब वो प्रकाश में होती है और जब अंधेरे में होती है। कहते हैं यह परिकल्पना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान सगड़ा की सांद्रता में बढ़ोतरी के आधार पर प्रकट किया जा सकता है। जब दिन के दौरान पानी का अंतःप्राशन रंध्रों से खुलने के प्रेरित करता है तो कहते हैं इसके विपरीत इसका अर्थ बाहरी परिश्रम की क्रियाओं के दौरान शर्करा की सांद्रता में जो है कमी रात्रि में रंध्रों के बंद करने की प्रक्रिया की पूरी करता है। कहते हैं द्वार कोशिका में दिन के दौरान जो आए बदलाव अर्थात प्रकाश में, रात्रि में अर्थात अंधेरे में नीचे दिए गए हैं। देखिए दोनों यहाँ पर क्रिया दिखाया गया है कि प्रकाश में क्या होता है, जैसे दीप्त में अभिक्रिया और अंधेरे यानी अदीप्त में क्या अभिक्रिया होती है। तो यह अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट होती है प्रकाश और अंधेरे में। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड कमी से जो है पीएच बढ़ने में मदद भी मिलती है तथा जीव द्रव्य जो है इसमें क्षारीय हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनाता है इसको। कहते हैं स्टार्च सगड़ा में बदलना, विलय की सांद्रता बढ़ना और
अन्य एपिडर्मस कोशिकाओं के अंतःप्राशन द्वारा पानी का द्वार कोशिकाओं तक जाना, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है और इसकी वजह से क्या होता है, द्वार कोशिका का समृद्धि दाब बढ़ जाता है और रंध्रों का क्या है, खुलना शुरू हो जाता है। तो रंध्रों का प्रकाश में खुलना ही इसके एक रिएक्शन के कारण बनता है। उसके पश्चात अंधेरे में अदृप्त में अभिक्रिया क्या होती है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एक एकत्र होना इसमें निर्धारित होती है और अम्लता में जो है वृद्धि और कार्बनिक अम्ल के निर्माण के कारण पीएच में कमी दर्शाई जाती है और स्टार्च जो है शकरा में स्टार्च में बदलना भी इसमें होती है और विलय की सांद्रता घटना शुरू हो जाता है और पानी का जो है बाहरी प्राशन निर्धारित करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्मृति दाब घट जाती है और रंध्रों का जो होता है बंद हो जाता है। तो इसे हम रंध्रों का अंधेरे में बंद होना कह सकते हैं। कहते हैं यही सिद्धांत रंध्रित गति की व्याख्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर कोशिकाओं में स्टार्च अनुपस्थिति रहता है या फिर द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की कमी भी हो सकती है। रात में अंधेरे खुलते, देखिए रात में जो रंध्र है खुलते हैं और कुछ पौधों में जैसे मार्शल्स टेक्सटस में दिन के समय में जो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो काफी इसका अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है इसके लिए। कहते हैं उसके बाद रंध्रों में पोटाशियम आयन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, रंध्रों में पोटाशियम आयन का भी अपना एक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं यह प्रमाणित हो चुका है कि पोटाशियम आयन को एकत्र होने से रंध्र खुले जाते हैं और पोटाशियम आयनों में कमी होने के कारण रंध्र बंद भी हो जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो कहते हैं दिन के दौरान क्या होती है, देखिए दिन के दौरान जो होता है कोशिकाएं द्वार में पोटाशियम आयन एकत्र करता है और विलय की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और स्मृति में वृद्धि होने से क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बताया जाता है रात्रि के अंधकार के दौरान क्या होता है। देखिए उसमें जो होता है पोटाशियम आयन की संख्या में कमी आ जाती है और विलय की सांद्रता में भी कमी आ जाती है और स्मृति में भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से रंध्र जो होता है टोटली बंद हो जाती है। तो यह अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं पोटाशियम आयन की जो के अंतर्ग्रहण के निम्न में किसी एक द्वारा संतुलित किया जा सकता है। देखिए अगर पोटाशियम आयन के अगर रिएक्शन को आपने कंट्रोल करना है तो आपके कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको समझ होनी चाहिए। अगर इसको कंट्रोल करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन यानी क्लोरीन आयनों का आयनों के रूप में अंतर्ग्रहण करवा सकते हैं। तो ये कोशिका क्लोरोप्लास्ट रहित होती है और क्लोराइड जो होती है आयनों के एनायन में रूप में लेने से पोटाशियम आयन की अंतर्वहन संतुलित रहता है। दूसरी बात बताती है कार्बनिक अम्लों में हाइड्रोजन आयन के परिवहन द्वारा निकालना। देखिए कुछ पौधों में द्वार कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जैसे मैलेट का एकत्र होकर स्टार्च में परिवर्तन से प्रकाश संश्लेषण में जो है मौलिक अम्लता बनता है और यह कार्बनिक अम्ल वियोजित होकर मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनाता है। पोटाशियम मैलेट के साथ अभिक्रिया करके पोटाशियम मैलेट बनता है, जिससे विलय का सांद्रता बढ़ जाती है। और कहते हैं पोटाशियम आयन का प्रवेश से जो है प्रोटोनों यानी हाइड्रोजन के बाहर निकलने से भी ये संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं एम्बिसिडिस अम्ल का क्या कार्य है। तो कहते हैं ऐसा देखा गया है कि मिट्टी में पानी कमी के दौरान या फिर प्रवर और विघटन के कारण से एक पादप हार्मोन जो है एब्सिड अम्ल पत्तियों में एकत्र हो जाता है और रंध्रों में जो है बंद करने में अहम भूमिका भी निभाता है और इस प्रकार जो है इसकी अधिक मात्रा में पानी कमी पर रोक लगती है और प्रायोगिक दशाओं की स्थिति में भी जब पत्तियों पर जो एम्सिडिक अम्ल छिड़का जाता है तो द्वार कोशिका बंद हो जाती है और पानी की क्षति को रोका जा सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन टू सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? सो फर्स्ट इज द absorption of water. First is the absorption of water. Is a transpiration pull that influence the rate of the absorption of the water from a soil. And second, the water movement. The second is a water movement. By transpiration, water move upward and as it pass into the cell's vasculars, it make the cell triggered. They give a form of a shape to be cell and the plant as a whole. And thirdly is a mineral salt transport. The water streams moving upward also carry their dissolving mineral required for the movement of plant. And transpiration also help in the distributing this as a mineral through the out of the plant body. And thirdly is a cooling. The evaporation of water due to transpiration cool the leaves. And fifth is a protection from the heat injury. Some plant like a cactus retain water is reducing transpiration. This save the plant from high temperature and strong sunlight. And next is a transpiration is a necessary evil. Friend, stomata remain to open during the day time from the absorption of the carbon dioxide and release of oxygen from a very important process of photosynthesis.
And when the stomata remain to open for this important gases exchange, escape of the water vapor cannot be controlled. Thus, the loss of water is the wasteful process which cannot be avoided because stomata must be remain open to do so things more important, that is the absorption of carbon dioxide during the daytime for the photosynthesis. It is for that reason that a quotate is 1926 has referred to the transpiration is a necessary of evil. And so next is a factor affecting the stomata's movement. So any condition which causes the rigidity of the gas cells will be cause a stomatal movement. The first is increasing solute concentration of gas cells, which will be allowed to endomosis of the water into the guard cells and making them graded. And second is the light catching the photosynthesis in the guard cell by the chloroplast, and hence the accumulation of the sugar in the guard cells would be increasing concentration of solute in a guard cells. And third, entry of potassium ion from the subsidiary cells into guard cells would be further increasing solute concentration in a guard cell. It is a three factor affecting the stomatal movement is the most important for the exam view. Let's come to the Hindi. देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वार्षिक विसर्जन जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी पौधों में, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना भूमिका अदा करता है। तो इसमें यही है कि वाष्पीकरण का महत्व क्या है। तो पहली महत्व तो यही होता है कि पानी को अवशोषण में काफ़ी हेल्प करता है। कहते हैं वाष्पीकरण के जो है मिट्टी में पानी के अवशोषण की दर को प्रभावित करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद जल गति के वेग को ये कंट्रोल करता है। कहते हैं वाष्पीकरण द्वारा जो है जल ऊपर की ओर चढ़ता है और कोशिका को रिक्तिकाओं से गुजरता है, जिससे कोशिका स्फीति हो जाती है और ये कोशिकाओं के आकार और प्रकार देता है और एक पौधे के रूप में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके पश्चात इंपॉर्टेंट बात है खनिज लवणों के परिवहन। कहते हैं जल का धारा ऊपर की ओर बढ़ते हुए गूढ़े खनिज के पौधे के विकास के लिए ले जाती है और वर्षों इन खनिजों के वितरण के संपूर्ण पौधों में भेजने में भी मदद करता है। देखिए दोस्तों, ये जो है जो आपको वर्षों का महत्व बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो आपको जो है इसको हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना है और याद करना है, तभी क्योंकि एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से कर सको। उसके पश्चात चौथा पॉइंट यही कहता है कि ठंडक। देखिए वाष्पीकरण के दौरान पानी के वाष्पीकरण के पत्तियों को काफ़ी कूल बनाता है, ठंडा कर देता है। कहते हैं गर्मी में होने वाली जो क्षति होती है उसको भी यहाँ पर जो है काफ़ी ये बचाव करती है, यानी गर्मी में होने वाली क्षति से बचाव करता है। कुछ पौधों में जैसे जो है कैक्टस वाष्पीकरण को कम करके पानी को संचलित रखता है और पानी पौधों को उच्च तापमान और तीव्र धूप से भी बचाता है, क्योंकि कैक्टस में आप देखोगे कि उसमें लीफ ही नहीं होती है, पूरे पार्ट ही जो होता है उसका बॉडी शेप में रहती है। तो इसको में वाष्पीकरण को जो है प्रभावित करने से रोकता है। रंध्र हमेशा दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए खुले रहते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है, वो होती है ऑक्सीजन को छोड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सभी जीव जंतुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो प्रकाश के संश्लेषण में जो है पौधे अपना क्रिया करते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। जब रंध्र इस महत्वपूर्ण गैसीय विनिमय के लिए अक्सर खुले रहते हैं और जलवाष्प को बाहर निकालना और नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है। उसके पश्चात कहते हैं कि इस प्रकार की बेकार की क्रियाओं में पानी की गति होती है जो कि रोकी नहीं जा सकती है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए रंध्रों को खुला रहना चाहिए, जिससे कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सके। यही वह कारण है जिसके जो है लिए कैक्टस में जो है वाष्पीकरण को एक जरूरी बुराई कहकर संबोधित भी किया गया है। यानी यही जो चीज़ है जिसकी वजह से जो है इसको बुराई भी कहा गया है। यानी हमने जो इसके बारे में जो हमने जाना तो इसे हम बुराई के बारे में भी कह सकते हो कि ये जो है वाष्पीकरण के एक जरूरी बुराई जो कहा गया, जिसने कैटेस ने 1926 में ये बात बताई थी। उसके पश्चात है रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए इसके 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि रंध्रों गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कहते हैं हर चीज़ का अपना जो है प्रभाव होता है। कोई भी दशा जो द्वार कोशिकाओं की संवृद्धि का कारण होती है वह रंध्रित गति का कारण भी होती है। यानी पहला तो यही बात बोलता है कि द्वार कोशिकाओं के विलय का सांद्रता जिसके द्वारा कोशिकाओं में पानी की गति होती है वह इस जो है कोशिकाओं को और दृढ़ बनाता है। दूसरी बात कहता है कि द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो है क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कारण होता है, तब द्वार कोशिका में शर्करा एकत्र होता है और द्वार कोशिका में जो है पोटाशियम आयन का सांद्रता होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब उसके पश्चात जो हमारा रहेगा प्रतिवर्षात्मक यानी एंटी
ट्रांसपिरेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। The next topic is anti-transparent. It is an important topic. The many crops plant give a poor yield is a dry season as the water loss by the transpirate is a much more than to the water uptake by the roots. The rate of transpirations can reduce by the application of the contained chemical known as the anti-transparent. Friend, the rate of the transpiration can be reduced by the application of contained chemically that is called to the anti-transparent. The chemical, however, should not affect the carbon dioxide uptake. The reduction in the transpiration is achieved by the two means. The first is a chemical like a mercury acetate PMA as abscisic acid ABA accuse the patients closure of stomata checking transpiration to the some extent, and some vaccines of a substance like a silicone emanations from a thin filament over to leaf and cover to stomata without affecting the uptake of carbon dioxide. So guttation is it is seen to early morning in the form of water droplet at the margin of tip of leaves of the heroicious plant. The plant which is the transpiration is a low and the root pressure is a high. The liquid water droplet are seen at the venue ending. The first is it is occur through a special pore called to the hydrothord. They are present near the veins ending, and it is a quite common in the young grass seedlings, and it is typically as a rainforest due to the warm and humid night. Tomato and nasturtiums are some common example of this. Yes, so in this picture is the nasturtiums leaf showing to the gutter at the margin of the leaves. A second is a vertically section of the leaves showing the hydrated. The first is the nasturtiums is their drop their evenus ended. Friend, here the show the drop at the veins ended. It is the processing. And second is a hydrothord. It is the hydrothord pore, air chamber, etheliums, veins endings, and xylem and epidermis. Show in this picture there is important of there is a hydridity and there is a quotation in the leaf. The here difference between the transpiration and guttation. The friend important for exam view. So long transpiration first and guttation is the second. The first is the water is a loss in the form of water vapor is the transpiration, as guttation is the second. The water is a loss in the form of water drop. The second point is occur through the stomatas, cuticles, and they are centralized means to the transpiration. And guttation is occur through the special pore called hydrodopted. And third is occur during daytime and at a high temperature. And second part is occurred at the night and the earlier in the morning at the low temperature. It is second, and the water vapor lost in the pure water and that does not be contain a mineral. So it is a guttation is the water loss has a substance dissolved in the water. It is a containing there is a amino sugar, salt, and amino acid. And here the increasing transpiration in the physically process. See the consistent physical force theory. It is due to increasing root and pressure that developing in the aerial soil, shoot and system where water absorption by the root in the more and transpiration areas plant part in the low. Friend, is an important difference between to the transpiration and guttation. अब जो हमारा आ गया है कि प्रतिवर्षजक क्या है, एंटी ट्रांसपिरेशन क्या होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम व्यू से ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और कई एग्जाम में तो आया भी है। कहते हैं इसमें बहुत सी अनाज की फसलें सूखे मौसम बहुत कम उत्पादन देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों की जरूरत द्वारा जो सोखा गया पानी वर्षों द्वारा हुई पानी की क्षति को कहीं अधिक होती है। कहते हैं वसन की दर को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों की छिड़काव करते हैं जिन्हें हम प्रतिविसर्जक कहते हैं। यानी रसायन के छिड़काव करने की प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट। याद रखना दोस्तों, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं, केमिकल के छिड़काव करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्षजक कहते हैं, इसे छिड़काव करना कहते हैं। ये रसायन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। इसमें दो तरह के वर्षण की कमी को लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पहला तो यही होता है कि रसायन जैसे कि फिनॉल, मर्क्यूरिक एसीटेट,
ठीक है, यानी फिनॉल मर्क्यूरी एसिटेट PMA और एब्सिडिक अम्ल जो होती है आंशिक रूप से रंध्रों को बंद करके कुछ हद तक वाष्पशोधन को रोक देता है। और दूसरी बात कहता है कुछ मोम जैसे पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन इमाइसिन पत्तियों के ऊपर झिल्ली जैसा आवरण बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की प्रक्रिया को रंध्र की हुई बिना की प्रभावित करती है, यानी रंध्र के हुए जो प्रभावित करता है, काफ़ी इसको इंपॉर्टेंट कहता है। अब यहाँ पर आता है कि ग्यूटेशन में क्या विक्रिया होती है, यानी बिंदु स्वात में क्या होती है। ग्यूटेशन का मतलब होता है बिंदु स्वात। इसका मतलब है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सुबह सवेरे बूंदों की शक्ल में सक्रिय पौधों की पत्तियों किनारे या सिरे पर छोटी छोटी जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। आपने देखा भी होगा, जैसे हम चित्र में भी देखेंगे। ऐसे पौधों में जिनमें वर्षण की दर कम हो और मूल दाब यानी रूट प्रेशर जो अधिक हो, तो ये द्रव्य जल परिषद में अंतिम छोर पर दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिंदु स्वात। ठीक है, यह विशेष रचना वाले छिद्र जिन्हें हाइड्रोथैड कहते हैं सिराओं के अंतिम छोर पर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। यह घास की नई नई पौधे में सामान्य पाई जाती है और सदाबहार वर्षा वनों में है गर्मी और आर्द्र रातों के कारण पाए जाते हैं, और टमाटर और नस्टरसीलम इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। अब यहाँ पर जो है आपके समक्ष डायग्राम प्रस्तुत है। कहते हैं इसमें जो है नाइट्रेसियम की पत्तियों के सिरों में बिंदु स्वात को दिखाते हुए है, और दूसरा जो है पत्ती को रिवर्स काट में है हाइड्रोथॉड को दर्शाता है। तो इसमें देख सकते हो कि जो है बारिश के जो कहते हैं इसमें जो हुआ है नेस्टेरियस में, वो जो है बिंदु स्वात यानी न्यूट्रेशन जो है दिख रहा है बूंदों के रूप में। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। दूसरा जो हमारा समक्ष जो है इसमें आप देखोगे कि हाइड्रोथॉबिट्स जो होती है, जिसमें आपको हाइड्रोथॉबिट छिद्र दिखेगा, वायुकोश दिखेगा, एपिथेलियम, सरांत, जाइलम, वायु त्वचा, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है इसके प्रोसेसिंग में। अब अगला जो पॉइंट है अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, कहते हैं वाष्प उत्सर्जन और बिंदु स्वात में क्या अंतर है। तो ट्रांसपिरेशंस एंड जो है आपका न्यूट्रेशंस में क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रेशन में, तो ये आप याद रखना एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि वाष्प उत्सर्जन और बिंदु स्वात में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर यही बताता है कि पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, जबकि दूसरे में क्या होता है, पानी जल के बिंदु के रूप में बाहर निकलती है। कहते हैं पहले वाला में यह प्रक्रिया रंध्रों या विकल्ट के वातरंध्रों में द्वारा होती है, जबकि बिंदु स्वात में क्या होती है, यह प्रक्रिया बिंदु छिद्रों में हाइड्रोथॉल्डस द्वारा होती है। और वाष्पोत्सर्जन में जो होती है जल वाष्प जो होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन में जो होती है यह दिन के समय और उच्च तापमान पर होता है, जब उच्च दिन में होगा और जब उच्च तापमान होगा। लेकिन बिंदु स्वात जो होती है रात में और कम तापमान पर भी होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट यही बताता है कि जब वाष्प शुद्ध जल के रूप में बाहर निकलता है और उसमें कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें जो होता है, कहते हैं शुद्ध जल के रूप में बाहर निकलता है और कोई तरह का खनिज इसमें उपस्थित नहीं होता। लेकिन बिंदु स्वात में क्या होती है, जल पानी में घुले हुए खनिज पदार्थों के साथ बाहर निकलता है और इसमें नमक और अमीनो एसिड जरूर प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें नमक और अमीनो एसिड पाया जाता है। जबकि इसके फिफ्थ पॉइंट जो है आखिरी पॉइंट है, कहते हैं बढ़ा हुआ वजन का जो है भौतिक अभिक्रिया देखते हैं, जैसे असमंजन भौतिक बल सिद्धांत के उपरांत। दूसरा में जो है इसमें यह बताता है बिंदु स्वात में कि यह अभिक्रिया उस बढ़े मूल दाब के कारण होता है जब वायवीय प्रवृत्ति तन में तन बढ़ता है तथा जब जड़ों के द्वार जल का अवशोषण वायवीय जो अंगों में अवशोषण की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों रहता है और आपको याद करना भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
लिए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।